नमस्ते सभी को। मैं हूँ सृष्टि और आज हम भगवद गीता चैप्टर 3 के यानी कि कर्म योग के श्लोक 16 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इवाम प्रवार्तिताम चक्राम ननु वर्तयातिहा यः यगहायुर इंद्रिया रामो मोघाम पार्था सा जीवाति। My dear Arjun, one who does not follow in human life the cycle of sacrifice thus established by the Vedas certainly leads to a life full of sin, living only for the satisfaction of the senses. Such a person lives in vain. जो सिर्फ अपने आप को सेटिस्फाई या अपने सेंस ऑर्गन्स को सेटिस्फाई करने के लिए कार्य करता है, वो हमेशा ही दुख दर्द में या पाप में रहता है। जो ईश्वर के भावना में बहुत सारे चीज़ों को सैक्रिफाइस कर देते हैं एंड एक अच्छी ज़िंदगी को बिताने के, डिसिप्लिन लाइफ को बिताने की कोशिश करते, स्पिरिचुअल लाइफ को बिताने की कोशिश करते, वो हमेशा ही प्रोटेक्टेड रहते हैं। लाइफ में गंदी घटनाएं घटने से बच जाते हैं एंड कहीं ना कहीं से उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स आए भी, क्योंकि इस संसार में रहते हुए मेटेरियलिस्टिक लाइफ का कुछ ना कुछ इफेक्ट आ ही सकता है। हम ईश्वर तो नहीं हैं, हम इंसान हैं, तो कुछ ना कुछ गलतियां कर ही सकते हैं। सो अगर कर भी लेते हैं ना, तो भी ईश्वर हमें हर तरीके से सेव करते हैं, बचा लेते हैं और हमारे साथ अच्छा करते हैं। यहाँ के एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। ये एक्सप्लेनेशन से पहले मैं खुद बताऊंगी कि मेरे लाइफ में ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं। हम इंसान हैं तो छोटे बड़े गलतियाँ करते रहते हैं, तो उसमें अगर कोई बड़ा क्षति होने वाला भी होता है तो वो भी भगवान हमें बचा लेते हैं उससे। एंड खराब से खराब सिचुएशन भी अच्छी से अच्छी सिचुएशन में बदल जाती है। द मैमोनिस्ट philosophy of work very hard and enjoy sense gratification is condemned herein by the Lord. Therefore, for those who want to enjoy this material world, the above mentioned cycle of performing yagnas is absolutely necessary. One who does not follow such regulations is living a very risky life, being condemned more and more. By nature's law, this human form of life is specifically meant for self-realization in either of the three ways, namely karma yoga, jnana yoga or bhakti yoga. There is no necessity of rigidly following the performances of the prescribed yagnas for the transcendentalists who are above vice and virtue, but those who are engaged in sense gratification require purification by the above mentioned cycle of yagna performances. There are different kinds of activities. Those who are not Krishna conscious and certainly are engaged in sensory consciousness, therefore they need to execute pious work. The yagna system is planned in such a way that sensory conscious persons may satisfy their desires without becoming entangled in the reaction of sense gratifactory work. The prosperity of the world depends not on our own efforts but on the background arrangement of the Supreme Lord directly carried out by the demigods. Therefore, the yagnas are directly aimed at particular demigods mentioned in the Vedas. Indirectly, it is the practice of Krishna consciousness, because when one masters the performance of yagnas, one is sure to become Krishna conscious. But if by performing yagna one does not become Krishna conscious, such principles are counted as only moral codes. One should not therefore limit his progress only to the point of moral codes, but should transcend them to attain Krishna consciousness. तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि मैंने पूरा ही एक बार में पढ़ लिया, बीच बीच में एक्सप्लेन करती जाती हूँ, बट मैंने एक बार में पढ़ लिया कि जो सारे हमारे वर्चूज़ ऑफ लाइफ वेदास में मेंशन किया गया है वो हमें कृष्णा कॉन्शियस बनने के लिए दिया गया है। अगर हम वो वर्चूज़ को फॉलो भी करते हैं लेकिन कृष्ण के प्रति या ईश्वर के प्रति वो फीलिंग जनरेट ही नहीं कर पाते, तो वो करने के लिए मतलब वो बस आप अच्छा काम तो कर रहे हो लेकिन उसका रिजल्टेंट इफेक्ट को जनरेट नहीं कर पा रहे हो, तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन उसके जगह अगर हम सही रास्ते पे चलने के लिए इन वर्चूज़ को यूज़ ना करके भी कृष्ण कॉन्शियस बन जाते हैं, या कृष्ण से या ईश्वर से या उस
स्पिरिचुअल सोर्स एनर्जी से कनेक्शन बना लेते हैं तब भी वो फ़ायदेमंद है, तब भी वो कुछ वैल्यू ऐड करता है। तो हमें ऐसा काम करना है कि जहाँ पे हमें ईश्वर के साथ में कनेक्शन हम बिठा पाए, राइट। सो दिस इज़ व्हाट इज़ सेड हियर कि हमें हमारे लाइफ के प्रोस्पेरिटी डिपेंड्स करता है कि हम कैसा इफ़र्ट डाल रहे हैं, हम कैसा कर्मा कर रहे हैं, कैसा हम अपने लाइफ को शेड्यूल कर रहे हैं, एंड इन सबके बीच में हम कितना स्पिरिचुअल बन रहे हैं, सोर्स एनर्जी के साथ में कितना कनेक्शन बना रहे हैं। जितना हम कनेक्शन बनाएंगे, जितना सही रास्ते में चलेंगे, उतना ही चीज़ें हमारे लिए सही होती चली जाएगी। हमारी सोल प्यूरिफिकेशन के प्रति हमेशा सज्जन रहेगी, प्यूरिफाइड होती जाएगी, क्योंकि मटेरियल कंटामिनेशन में रहते हुए हम कभी ना कभी गलत एनर्जीज में आ सकते हैं, गलत डायरेक्शन की तरफ जा सकते हैं किसी भी फॉर्म में। तो उन सब से बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी हमें फ़ायदेमंद कर सकती है, हमें फ़ायदा करवा सकती है, हमें सही रास्ते में ले जा सकती है। तो हम जितना स्पिरिचुअल बनते जाएंगे, हमारी जो सोल है वो उतनी ज़्यादा प्यूरिफाइड होती चली जाएगी एंड हम सही रास्ते में चलते जाएंगे। यही तक था श्लोक नंबर 16 ऑफ कर्मा योगा। अगले वीडियो में हम कवर करेंगे श्लोक नंबर 16। तब तक के लिए हरे कृष्ण।